Hi everyone, welcome to my video. In this video, I will discuss about the UP primary book, that is class 6 of science. Uh, as we know that these primary books are very essential for the preparation of the exam of PLT and the further teaching exam. So in this video, I will discuss with the chapter number 2, as I'm not using the first chapter because it is not very important for the preparation purpose. So the second chapter is known as Paas Padosi Vastu and Neighborhood Items, in which the chapter is focused on the matter. So let's get started. कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ये भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है. In short, that an item is made up of only a single matter, or whereas we can say that an item is made up of many matters. एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं. Also, we can say that by a single matter you can make many of items. संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं. In the world we found several things and these all things are made up of matter. जिस हवा में हम सांस लेते हैं, the air we breathe, जो पानी हम पीते हैं, the water we drink, and also रेत का एक कण यानी a single element or the single particle of sand are all the example of matter. इन सभी पदार्थों का कुछ मास होता है. As you know that if there is mass, they also occupy space. So these all matter have their definite mass and they also occupy some space. And initially on the primary level, we know that there are three types or we can say that there are three states of matter. यानी कि पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं. But as you go to the higher level, you will get to know that there are five states of matter, that is solid, liquid, gas, plasma, and post-Einstein condensate. But in this chapter, we will discuss only the three matter of states, that is solid, liquid, gas. So, अब इनकी एक एक करके हम बातें करते हैं. So the first state of matter is known as solid. In Hindi, it is called ठोस. And let's talk about their properties. ठोस पदार्थ के कण यानी कि molecules, or we can say that अणु बहुत पास पास होते हैं. As we see in this picture, the molecules of the solid are very near to each other. इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है. और why the question is that why they are so near to each other, that the intermolecular attraction force between them is so high that they bounce on this position or they bound in the rigid mode. Also ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है. So the shape and the volume of these solids are fixed. Now let's talk about the second state of matter, that is drav. In English it is called liquid. As we see here, in comparison to the solid की तुलना में जो द्रव है उसके अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. ऐसा क्यों है? Because the intermolecular force between them is very low as compared to the solid. यानी कि इनके बीच का जो आकर्षण बल है इनके अणुओं का वो ठोस की तुलना में कम होता है. द्रव का आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है. Yes, the volume of liquid is fixed but their shape is not fixed. As अगर आप इसे ग्लास में रख देंगे तो ये ग्लास की शेप ले लेगा, अगर आप इसे किसी कटोरी में रखेंगे तो ये कटोरी की शेप ले लेगा. Further moving on the third state of matter, that is gas. And in comparison with liquid and solid और liquid की तुलना में इसके जो अणु हैं उनके बीच जो attraction force है, the intermolecular force between the elements of gas are very lower, very very low. That's why गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार. Means nor their volume is fixed, and sorry, neither their volume is fixed nor their shape. So let's move further. And now let's talk about there some properties of these matters. जल में घुलनशील तथा अघुलनशील पदार्थ, soluble and insoluble substance in water. किसी द्रव में घुलने वाले पदार्थ को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं. यानी कि if a matter is can be soluble in water, it is called a soluble matter, or in simple it is called as soluble.
और जो पदार्थ द्रव में नहीं घुल पाते हैं, यानी कि द मैटर्स विच आर नॉट soluble or we can say insoluble are known as insoluble or the insoluble matters. चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ, सिंपल एज द सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। अब यहाँ पे इनकी बात हो जाएगी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक की, यानी कि चुंबक जिन पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है वे चुंबकीय, यानी कि मैग्नेट अट्रैक्ट the matter which are attracted by a magnet is known as magnetic materials. जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता वो अचुंबकीय पदार्थ, एंड which matters are not attracted by a magnet is known as non-magnetic material. लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातु से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। एक्सेप्ट द आयरन, मैग्नेट आल्सो अट्रैक्ट nickel, cobalt. Means the metal are made up of cobalt and nickel also get attracted towards magnet. तत्व, यौगिक और मिश्रण की जानकारी, knowledge of element, compound and mixture. Now we will talk about what is element, what is compound, what is mixture. यानी कि तत्व, यौगिक, मिश्रण क्या होता है। एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं, यानी कि one and more elements are compoundly make a compound. Means अगर हम एलिमेंट्स मतलब एक से अधिक जो भी एलिमेंट्स हैं वो मिलकर क्या बना देंगे, हमारे यौगिक बना देंगे. सो वी कैन से दैट कंपाउंड इज ए मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाइल मिक्सचर इज ए डिफरेंट थिंग. कभी कभी अलग अलग पदार्थ आपस में मिल जाते तो हैं परंतु उनके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं. यानी कि समटाइम्स जो ये मैटर्स हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं लेकिन जो उनके जो प्रॉपर्टीज है, जो उनकी इनिशियल प्रॉपर्टीज है उनमें कोई चेंज नहीं होता है. तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं. सो सिंपल मिश्रण वो है जो दो चीजों से मिलकर तो बनाए लेकिन उनमें अपने गुणों को खोया नहीं है, ठीक है ना, तो वो हमारा मिश्रण कहलाएगा. पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सब्सटेंस. सो एज वी नो दैट matters are made up of very small particles which can't be seen by the normal eyes. यानी कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बनते हैं और इन कणों को पदार्थ की संरचना की इकाई कही जाती है, and these are called the building blocks of the matter. So let's talk about the building blocks of matter. पदार्थ का सूक्ष्म कण, यानी कि the सूक्ष्म कण, the microscopic elements of matter is known as अणु एंड परमाणु, यानी कि मॉलिक्यूल और एटम है जो कि उनके सूक्ष्मतम कण है. पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में ले सकता है तथा जिसमें उसके सभी गुण विद्यमान होते हैं. यानी कि एलिमेंट, और यू कैन से दैट द एलिमेंट विच कैन रिसाइड्स इंडिपेंडेंटली इन द नेचर. यानी कि पदार्थ का एक ऐसा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इंडिपेंडेंटली रह सकता है और उसमें उसके सभी गुण विद्यमान रहते हैं. यानी कि उसमें मैटर के जो इस मैटर से वो बना है उसके सारे गुण उसके एक एक एलिमेंट में हैं, तो वो उसके क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु कहलाते हैं. किसी तत्व अथवा यौगिक के सभी अणु एक समान होते हैं. एज वी टॉक अबाउट इफ देयर इज ए सिंगल कंपाउंड और द एलिमेंट्स देयर होल मॉलिक्यूल्स आर सेम, ठीक है, परंतु किसी दो तत्व या यौगिकों के गुण भिन्न हो सकते हैं. If we compare the two molecules or if we compare the two compounds and elements, their molecules can be different. यानी कि different एटम से मिलकर बने हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही यौगिक में कई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हों, ऐसा कहा जा रहा है. यानी कि जो भी आपका जो एलिमेंट है, जो भी कंपाउंड है, उसके अणु सब समान होंगे लेकिन किन्हीं दो तत्वों या यौगिकों के अणु जो हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं. अब बात करते हैं हम एटम की. किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, in the sense the particle of minimum, the micro organism, sorry for that, the minimum particle of matter which can't reside freely in the nature, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, but can take part in the chemical reaction, लेकिन जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, परमाणु यानी कि एटम कहलाता है. ठीक है, मीन्स द
micro element of any matter which can not resides in nature independently but can take parts in a chemical reaction is known as atom. तत्वों के संयोग से का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है. Means by the combination of elements, if they are forming a compound, then this is known as a chemical reaction. किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं जबकि दो तत्वों के परमाणु परस्पर भिन्न होते हैं. Same as the molecule, if the element or a compound, if a single element or a compound, their whole atoms are same, but if there are two elements or compound, their atoms can be different from each other. So this is from all enough from the second chapter of class 6. Now move on to the second chapter. As I talked initially that I will cover 2 chapters in it because the first chapter is very short. So the second chapter is पदार्थों का पृथक्करण, means the separation of matter. अब हमने मैटर की बात कर ली, अब उसके सेपरेशन की हम बात करेंगे. बात करते हैं मिश्रण एवं मिश्रण के प्रकार. टाइप ऑफ मिक्सचर एंड व्हाट इज ए मिक्सचर. As we talked earlier, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है. If we mix two or more molecules, two or more matters, they produce a mixture. ऐसे मिश्रण जिसमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है. मीन्स यू कैन इजीली डिफाइन कि इसमें ये मिक्स है, ये इसमें ये मिक्स है. यानी कि आप उसमें पता कर सकते हैं कि इसमें जो दो दो पार्टिकल मिक्स हैं वही इसमें मिलावट है. देन इट इज कॉल्ड विषमांगी मिश्रण और आल्सो नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. यानी कि उसके जो उसमें अभी हमें जो भी एलिमेंट यूज करे गए हैं उस मिक्सचर को बनाने में वो आप अलग अलग पहचान सकते हैं, तो वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. वेयरएज ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं हमारे समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर. Those type of mixture that are made up of two or more elements, or we can say that there are two or more elements presented in it, but it's difficult to see them see them different or to differentiate them easily. मीन्स उन्हें अलग अलग आप देख नहीं सकते और जल्दी से उनका पता नहीं ला सकते. ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर. मिश्रण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर. मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं. यस, द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और द मिक्सचर इज दैट कि एक मिक्सचर में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो कुछ ही हो सकता है, वो किसी भी रेशियो में मिल सकते हैं. लेकिन कंपाउंड में उनका फिक्स जो है उनका फिक्स रेशियो होगा. जैसे H2O, इससे कंपाउंड. अब ये H2 है, इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन का 1, तो इनका एक रेशियो होगा. यानी कि कंपाउंड जो है वो उसका एक फिक्स रेशियो होगा, लेकिन मिक्सचर का ऐसा कोई रेशियो नहीं होता है. घटकों के अपने गुण विद्यमान होते हैं, जो उनमें कंपोनेंट्स हैं उनके अपने अलग गुण हो सकते हैं. जिस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और होमोजीनियस. उसने अपना नई गुण छोड़ा. प्रत्येक घटक को पृथक किया जा सकता है. यस, यू कैन डिफरेंशिएट ईच एलिमेंट. मिश्रण को उनके अवयव से अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं. The process of separating a mixture from its constituents is called separation. यानी कि मिश्रण को उनके जो कंपोनेंट जिनसे वो बने हुए कंस्टिट्यूएंट्स बने हुए हैं उनको अलग अलग करने की प्रक्रिया हमारी सेपरेशन कहलाती है. एंड द चैप्टर इज ऑल अबाउट द सेपरेशन. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. पदार्थों का पृथक्करण क्यों आवश्यक है. अब हम बात तो कर रहे हैं पृथक्करण की, सेपरेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन why this is so important? अनावश्यक अवयवों को पृथक करने में. यस, द नॉन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स लाइक इन आवर लाइफ, नेगेटिव चीज को दूर करना, यानी कि जो नॉन इम्पोर्टेंट चीज है उनको दूर करना, इसलिए हम सेपरेशन का यूज करते हैं. लाभदायक अवयवों को प्राप्त करने में. यस, आल्सो हम बुरी चीजों को तो निकाल भी रहे हैं, अच्छी चीजों को अपने पास रख रहे हैं, तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. लाभदायक अवयवों को अपने पास, प्रॉफिटेबल एलिमेंट्स को अपने पास रखने के लिए. शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने में. यस, टू रिफाइन द प्रोडक्ट सेपरेशन इज रिक्वायर्ड. मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करने में. आल्सो टू नो दैट इसमें कितना मिक्सचर में, इस मिक्सचर में कौन सा एलिमेंट कितने अनुपात में मिला हुआ है, इसलिए हम उसको सेपरेशन करते हैं. पता करने के, दूध में कितना पानी है वही.
So let's move on the separation methods. पृथक्करण की प्रक्रिया में मिश्रण के एक घटक के उस गुण का उपयोग किया जाता है जो दूसरे घटक में ना हो. यस, सेपरेशन की प्रोसेस में व्हाट इज गोइंग इनटू द सेपरेशन प्रोसेस, दैट उसके जो एक एलिमेंट को अगर आपने अलग कर लिया तो दूसरा एलिमेंट जो अलग हुआ है उसमें उस फर्स्ट एलिमेंट के कोई भी इम्प्रेशंस ना हो, यानी कि उसमें आपने एक दूध में से पानी अलग कर लिया तो दूध में केवल दूध ही दूध हो, पानी ना हो. ठीक है. चीनी में अगर नमक मिला दिया तो जब उनका सेपरेशन किया तो चीनी अलग हो, नमक हो अलग हो, लेकिन दोनों में कोई एक भी एलिमेंट ना रह जाए, उसे हम सेपरेशन कहते हैं. मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक करने के लिए विलेयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, उनके भार, घनत्व, आकृति, आकार, रंग आदि को आधार मानकर निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है. यस, इन द सेपरेशन ऑफ दिस कंपोनेंट्स, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी कितनी है, उनका चुंबक के प्रति आकर्षण है कि नहीं, यानी कि वो दे आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, उनका जो वेट क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, व्हाट इज देयर शेप एंड साइज, व्हाट इज देयर कलर, इन सबको आधार मानकर उनका सेपरेशन किया जाता है. ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड्स, यानी कि अब सॉलिड से हम सॉलिड को अलग कर रहे हैं. तो इसकी जो पहली प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फटकना और ओसना, यानी कि विनोइंग. एज यू सी देयर इज अ लेडी हु इज डूइंग द विनोइंग प्रोसेस. घर में आपने अपनी माँ को सूप से गेहूं और चावल को फटक कर साफ करते हुए देखा होगा. यस, यू सी योर मदर विनोइंग द गेहूं और द राइस, यू कॉमनली सी देम, जिसके द्वारा अनाज में मिली हल्की अशुद्धि को अलग किया जाता है. और मतलब द प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेशन द हार्मफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द दैट गेहूं एंड चावल. अलग करने की इस विधि को फटकना कहते हैं. ठीक है. तो इस विधि को जो हम कहते हैं विनोइंग कहते हैं, यानी कि जो आपके घर में यूज की जा रही है उस चीज को आप जो सेपरेशन मेथड है, और ये किसके लिए सेपरेशन, आपके गेहूं और चावल मतलब खाने की चीजों से रिलेटेड है, तो उस प्रोसेस को आप विनोइंग कहते हैं. एज यू कैन सी दैट द लेडी इज डूइंग द विनोइंग प्रोसेस. गेहूं ले रखे हैं और वो अपने आप जा रहे हैं. हवा की, हाँ इसमें दूसरी चीज और, हवा का यूज हो रहा है यहाँ पे, हवा से सेपरेशन हो रहा है. जो हार्मफुल और जो हल्के कंपाउंड्स हैं वो उधर उड़ जा रहे हैं और जो गेहूं है वो यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है. खलियान में किसान को वायु की सहायता से गेहूं को साफ करते देखा होगा, जैसे वो अभी आंटी कर रही थी वैसे ही किसान भी साफ करता है इस तरह से. किसान भूसा युक्त अनाज ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर गिराता है, जिससे गेहूं उसके पास गिरता जाता है और हल्का भूसा हवा से उड़कर दूर एकत्रित हो जाता है. यू आल्सो सी अ फार्मर इन द विलेज. The farmer used to go into the high place and they throwing the अब आप समझ सकते हैं they throw the rice on the floors by which the जो आपके जो लाइट कंपोनेंट्स हैं, which are the light components got drift away by because of the air and your गेहूं will be collected on the ground. पृथक्करण की इस विधि को ओसना कहते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड विनोइंग. सो विनोइंग एंड यानी कि द फटकना और ओसना दोनों की सेम प्रोसेस है and it is mainly used for the चावल और गेहूं के लिए. Threshing. The next separation process is known as threshing. अनाज के कणों को डंडियों से पीटकर अन्य कणों को पके हुए पोषण से अलग करने की प्रक्रिया को threshing कहते हैं. The process why we use a stick to do the separation of the the food grains which is commonly that अरहर की दाल से तूर की दाल भी कहते हैं. The process by which you use a stick and keep separating them by throwing them or by like that beating them on the ground is known as the threshing process. The next process is known as bean that is sieving. ये तो घरों में बहुत हुई है, आपने खुद भी किया होगा मेरे ख्याल से. तो इस विधि का उपयोग दाल, चावल, गेहूं आदि से अशुद्धियां दूर करने के लिए करते हैं. द प्रोसेस इज यूज्ड कॉमनली फॉर टू सेपरेट द pulses, the rice and the grains from the harmful components.
अशुद्धियों को हाथ से बीन कर पृथक करने की प्रक्रिया को बीनना कहते हैं. ओके, द प्रोसेस इन विच योर हैंड ओनली द हैंड्स आर यूजिंग is known as sieving. Means you are directly using your hands and keep outing their impure elements from your food grains is known as sieving. Chalana. The next process is known as chalana. और चलना भी कहते हैं ऐसे जो मकान बनाते समय जाली से बालू को चलते हुए महीन बालू के कंकड़ों महीन बालू को कंकड़ों से छानकर अलग करने की प्रक्रिया को चलाना कहते हैं. ओके, एज यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन, आपके घर में कंस्ट्रक्शन हुआ होगा. So the laborers used to have a tool that is known as like a big छलनी, जैसे घर में चाय की छलनी होती है वो एक बड़ा छलना होता है, जैसे इंग्लिश में वो सॉरी जिसे छलना ही कहते हैं. आई डोंट नो द इंग्लिश वर्ड फॉर दैट. सो जो ये छलना होता है इससे क्या होता है, वो उसमें सीमेंट डालते हैं और सीमेंट को छानते हैं जिससे उसमें जो कंकड़ वगैरह हैं, जो बुरी चीज़ें हैं वो उसमें से निकल जाए. तो द प्रोसेस फॉर यूज टू सेपरेशन the uh, pebbles from the sand to for the construction purpose is known as chalana. The next portion is called ऊर्ध्वपातन, sublimation. जिस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में बदल जाता है और ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाती है, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं. As we know that what is sublimation? Sublimation में क्या होता है? The solid get direct converted into vapor if we heated it, and and if we cold freeze that vapors, they directly converted into the solid forms. So this process is called the sublimation. Without going any liquid process, they directly from the solid they convert into the gaseous state, and the gas converted into the solid state is called the sublimation. This is also a process of separation of matter. आयोडीन और नेफ्थलीन को भी अन्य मिश्रणों से इसी द्वारा पृथक किया जाता है. So this is a key point from that the process for using the separation of iodine and naphthalene is known as sublimation. अब बात करते हैं अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना. पहले तो हम सॉलिड से सॉलिड निकाल रहे थे, अब हम ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करेंगे. सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड्स. और कौन का करेंगे? जो इनसॉल्युबल है. The first process is known as तल छटीकरण और निथारना, sedimentation and decanting. Okay. In this process, एक बीकर में पानी लें, put some water in a beaker, इसमें थोड़ी बालू मिलाएं. Now pour some sand in it. अब थोड़ी बाद देर के लिए आप इसे रख दें and put it for an hour. आप देखेंगे कि बालू नीचे बैठ जाएगी. You see that the sand got collected into the base of that beaker, और पानी ऊपर रहेगा. एंड वाटर इज ऑन द मतलब पानी तो पूरे में ही रहेगा, लेकिन जो आपकी जो बालू है वो नीचे इकट्ठी हो जाएगी. इस प्रकार बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना तल छटीकरण और पानी को पृथक करना निथारना कहलाता है. सो इन दिस प्रोसेस from the mixture of water and sand, as the sand, जिस तरह से वो सैंड अलग हुई, the sand got collected into the bottom is known as तल छटीकरण, sedimentation. Okay. And the process by which the water got separated from that soil is known as decanting, यानी कि निथारना. जैसे पानी अलग हुआ बालू से, वो ऊपर की तरफ आ गया, और जो बालू है वो नीचे इकट्ठी हो गई, तो बालू जो नीचे इकट्ठी हुई वो प्रोसेस हमारी सेडिमेंटेशन कहलाई, और जो पानी ऊपर रह गया वो हमारा डिकेंटिंग कहलाया. इसी वजह से जो समुद्र है उसमें जो बालू होती है वो सेडिमेंटेशन की वजह से नीचे जमा हो जाती है. Now the second process is छानना, filtration. साधारणतः फल व सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस बूंदों को पृथक कर लिया जाता है. इसके लिए छानने की विधि का प्रयोग किया जाता है. The process for purifying the vegetables and fruits in our house, हम उसे धोते हैं, लेकिन सिंपली उसे धोने के बाद छानते भी हैं कई कई जगह लोग. तो जो फिल्ट्रेशन मेथड is using for the filtration of vegetables and fruits is known as filtration. ठीक है ना.
अपकेंद्रण. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपकेंद्रण. द अपकेंद्रण अब आपको थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा होगा. यस, इट इज कॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. घरों में प्राय दही को मथनी से फेंट कर करें मक्खन और छाछ को पृथक करते हैं, ठीक है ना. फेंट कर जो क्या है मक्खन और छाछ को अलग पृथक करें, मतलब अलग अलग किया जाता है. ये आपने देखा इन योर हाउस होल्ड यू सी दैट वी सेपरेट by using that रई. हम जो मक्खन है, जो भी आपका दही है, उससे कर्ड से हम मक्खन बटर बनाते हैं और हम क्या करते हैं उससे छाछ भी बनाते हैं, जिससे चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ दैट जो भी चिकनाई के हल्के कण है वो भारी कणों से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे. इस प्रक्रिया को हम अपकेंद्र कहते हैं. तो सिंपली द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर the separation of these oily products like curd, and the process of making butter, the process of making ghee is known as centrifuge or the upkendran, the process we use and cause of centrifugal force. So now let's talk to the next heading, घुलनशील पदार्थ ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना. अब हमने पहले बात करी थी इनसॉल्युबल, लेकिन अब ये सॉल्युबल सॉलिड्स हैं. सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड. घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का उपयोग करा जाता है. ओके. To separate the soluble solids from liquid, we use a method that is called evaporation method. Now let's talk about the evaporation method. So the first method is as the evaporation method. Now to understand this, let's take some water in a beaker. So here we have a beaker. इसमें थोड़ा सा पानी और नमक घोल कर इसे रखते हैं. Now pour some water and salt and mix it vigorously. थोड़ी देर बाद सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और बीकर में नमक शेष रह जाएगा. और हाँ, ये भी ध्यान रखें, इसमें अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो ये जल्दी इवेपोरेशन होगा, ठीक है ना. सो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट अप्लाइड. जितनी आप हीट देंगे वो जल्दी इवेपोरेशन होगा. सो आफ्टर सम टाइम यू सी दैट द वाटर गॉट इवेपोरेटेड एंड देयर इज ए रेजिड्यू ऑफ साल्ट इन दिस बीकर. इस विधि द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है. ओके. एंड सो also this is the process by which you can separate by which you can get salt from the sea, है ना. तो इसी विधि से क्या है, आप जो है नमक समुद्र से प्राप्त करते हैं. मुबारक हो, आप नमक बनाना सीख चुके हैं. भाप का द्रव में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कंडेंसेशन कहते हैं. ओके. Now also as we are talking about the evaporation, so इसमें जो वेपर है, the vapor that going to converted into the liquid is known as condensation. ठीक है. सब्लिमेशन में क्या हो रहा था, भाप सीधे क्या बन रही थी, सॉलिड बन रही थी. जो वेपर है वो सीधे सॉलिड बन रही थी. लेकिन कंडेंसेशन में क्या हो रहा है जो आपकी वेपर है उस टाइम कन्वर्ट हो रही है लिक्विड. सो ये ध्यान देने वाली बातें हैं. ओके. किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया को डिस्टिलेशन यानी कि आसवन कहते हैं. The process by which we get a pure liquid from any solvent or any water liquid, the process are used evaporation and condensation are known as distillation. In the simple words, distillation is a process by which you can separate the pure water from the impurified water by the method of evaporation, and the condensation method is known as the distillation method. ठीक है ना. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये वेपर्स निकल रही हैं ऊपर, वो बर्फ रख दी गई है, लेकिन इन द एनवायरनमेंट वो धीरे धीरे पिघल, जो वेपर है वो धीरे धीरे टाइम कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर होगा तो धीरे धीरे वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये जो प्रोसेस है जिससे हम वाटर प्यूरिफाई कर रहे हैं वो डिस्टिलेशन है, और इसका बहुत यूज किया जाता है. दिस इज आल्सो आई थिंक द प्रोसेस यूज्ड बाय फ्रांस टू कन्वर्ट द sea water into a purified water. Okay. The second process is known as crystallization और क्रिस्टलीकरण. फिटकरी को पानी में घोलें, इसे गर्म करें. ओके.
फिटकरी को क्या करें, जो एलम है, जो कि फिटकरी है, उसे पानी में लें और उसे घोलें और उसे गर्म करें। अब इस घोल को बिना हिलाए ठंडा करें। ओके, नाउ टेक सम एलम एंड मिक्स इट इन वाटर एंड हीट इट। ओके, वो उसमें घुल जाएगी, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम उसे लें, उसे ठंडा करें, जस्ट कूल्ड इट, एंड कुछ घंटों बाद फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। आफ्टर दैट यू विल सी सम प्योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ दैट alum, and this process is known as crystallization. So crystallization is the process by which you can see the crystal structure, pure crystal structure of alum. Okay ना, तो ये आपकी क्रिस्टलाइजेशन मेथड है। और ध्यान रहे हम सेपरेशन की बात कर रहे हैं, मैटर के सेपरेशन की। सो दीज आर द प्रोसेस। दो अमिश्रणी द्रव्यों को पृथक करना, यानी कि सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। पानी और मिट्टी के तेल का मिश्रण है। ओके, अब आप जानते हैं, आप पानी और मिट्टी के तेल का ही क्यों, आप पानी लें और उसमें अपने जो हेयर ऑयल है उसे डाल दें, वो भी मिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो पानी और मिट्टी के तेल का मिश्रण लें। लेट्स टेक द वाटर एंड योर हेयर ऑयल, आई विल टेक द हेयर ऑयल। इस मिश्रण को पृथक करी बनाना है। लेट्स पुट इट इनटू द फनल लाइक दैट, और हिलाकर स्थिर होने दें। अब उसमें आप डालेंगे तो वो स्थिर, मतलब अभी तो मिक्सचर होगा, ऊपर नीचे होंगे, अब उसे थोड़ी देर के लिए सेट होने दें। हीट में दो पृथक परतें दिखाई देंगी। आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट जो केरोसिन है, क्योंकि वो पानी से हल्का है, वो ऊपर आ जाएगा, और जो वाटर है वो यहाँ पे नीचे रह जाएगा। इसीलिए यह पानी से के ऊपर एकत्रित होता है, क्योंकि जो तेल है, मिट्टी का तेल है, वो पानी से क्या है, हल्का है। इस वजह से जो तेल है वो पानी के ऊपर आ जाता है। सो दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड्स, जो कि दोनों एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। सो दिस इज आई थिंक फ्रॉम द chapters of class 6, first, second and third. So hope you like it, and I will try to as soon as possible finish the whole course for the preparation. Hope you like it, and thanks for watching. God bless you all.